सिमिलरली होटल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने होटल को कैसे ड्रॉ किया, होटल को रेड कलर के बॉक्स में ड्रॉ कर दिया। अभी दिस वन गेस योरसेल्फ, व्हाट इज दिस रिप्रेजेंटिंग, व्हाट इज दिस सिंबल रिप्रेजेंटिंग इन दिस स्केच? हु कैन आंसर मी? Raise your hands. Rest of the people type it in the chat box. Yes, Prasad. Tree. Tree, absolutely correct. So this is looking like a tree. So we are using relatable symbols. ठीक है? अभी this is इसके नीचे लिखा हुआ है this is post office. ठीक है? This is central market. This is bus stop. So this is how we have drawn a sketch, right? So basically, now what we will do is we will convert this sketch into a map. ठीक है? We will convert this sketch into a map, and to do that we need to show three things. We need to show three things, three important things, which are direction, index, and a title and a scale. So basically four things are required: directions, index, title, and scale. So basically, let us convert this sketch into a map. ठीक है, तो अभी इस स्केच को हम मैप में कन्वर्ट करने के लिए लेट्स डू वन थिंग. व्हाट वाज वन थिंग दैट वी नीडेड टू डू? जो भी हमने सिंबल्स बनाए थे उनके हम साइड में नाम लिखेंगे कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्केच के साइड में व्हाट दे हैव डन, दे हैव ड्रॉन द सिंबल छोटा सा एंड उसके बगल में लिख दिया ट्री. सो अगर कोई इंसान, कोई दूसरा ह्यूमन बीइंग इस मैप को पढ़ रहा है, सो व्हाट ही विल ऑब्जर्व दिस, that wherever I find symbol like this, it is going to tell me that it is a tree. So when now I am aware of this knowledge, when I look at the map, I will find out that here is a tree, this is a tree, this is a tree, because all these symbols are representing a tree, right? Similarly, now if I move down and if I look at this symbol, so this is telling me what? If I see a rectangle which is pink colored, then it is representing what? A colony. So now if I look at my map, I can see that over here I have a pink colored symbol. So this is what? This is a colony. Over here also I have a pink colored rectangle. So this is what? This is also a colony, right? Similarly, now tell me, how will you identify how will you identify a bus stop? Let me hear this from rest of you. Type it in the chat box, and whoever wants to come off mute and chat, they can raise their hand. Yes, Sanjana, let's hear from Sanjana this time. भैया बस स्टॉप इज गोविंदवा. नाउ. कहाँ बस स्टॉप कहाँ है संजना? North and east. North and east. नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? नॉर्थ ईस्ट में कॉम्पस रोज को आपने कहाँ रखा? जहाँ हमने बस स्टॉप के साइड में. बस स्टॉप के साइड में. सो अगर आप यहाँ से देख रहे हो, सो कॉम्पस रोज यहाँ पे है. सो यहाँ से ये बीच में जो डायरेक्शन आ रही है, व्हाट इज दिस डायरेक्शन कमिंग टू बी? ये डायरेक्शन किन दो पॉइंट्स के बीच में आ रही है? नॉर्थ. पक्का नॉर्थ? ध्यान से देखो. सॉरी भैया. नॉर्थ. नीचे क्या डायरेक्शन? South and east. So what will be this direction? What will be this direction? South and east. Southeast, right? Yes. So absolutely correct. So this is how we will figure out the direction. अब भैया अगर हम आपने बोला कि आपने यहाँ किया स्कूल पे से, तो अगर हमने हमारे पेपर में भी अगर यही आएगा, लेकिन मतलब ये मैप, ये कंपास हमें जहाँ ये नॉर्थ ईस्ट ये जहाँ रहेगा वही हमें रख के देखना है क्या? यस, जहाँ पे आपके मैप में दिया होगा ना, वहीं रख के देखना है.
Okay. Yes, absolutely correct. Some people are raising their hands. Yes, Yash, I can see you are raising your hand. Yes, here, do you have anything? Okay. Arjun, do you have anything? Great. So if there are no doubts, we will move ahead. So what are the important points that we need to keep in mind once we are drawing map? Okay. What are the important points that we need to keep in mind once we are drawing a map? The first thing that you have to keep in mind that every large building, everything on a map can be represented by a small symbol. So we will draw those small symbols instead of drawing that large building and those all complex drawings. ठीक है, हम simple symbol को draw करके we will represent कि कौन सी चीज क्या है. फिर वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसको एक कोने में लिख देंगे. उसको एक कोने में लिख दिया हमने कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. ग्रेट, ये चीज हो गई. उसके बाद क्या करेंगे, हम एक अपना डायरेक्शन दे देंगे कि बेसिकली डायरेक्शन हम कैसे मेजर करने वाले हैं. राइट, व्हाट विल बी अवर रेफरेंस पॉइंट फॉर डायरेक्शंस. सो ओवर हियर हमने यहाँ पे सेंटर में अपना कॉम्पास रोज रख रखा है. राइट, ये एक चीज हो गई. एंड व्हाट विल बी द फाइनल थिंग दैट यू विल ड्रॉ रोड्स वैसे ही आप ड्रॉ करोगे, रोड्स, रिवर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस, ठीक है, वो आप रेलवे लाइंस, वो आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे जैसे कि एक्चुअल में है. राइट, सपोज मान लो अंजू की जगह ये आपका घर है, ये आपका घर है एंड आपके घर से जस्ट बाहर निकलते ही थोड़ी देर बाद एक रोड आ जा रही है. तो उस रोड को आपने वैसा का वैसा ही ड्रॉ किया. अब उसके बाद एक रोड सीधी जा रही है एंड यहाँ से व्हाट इज हैपनिंग that we have a cut in road and this road is getting cut into two other roads. So these two other roads you need to draw like that only. ऐसे आपने ड्रॉ कर दी. सो रोड को आप सिंपली पतली एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो. फिर यहाँ से एक और रोड जा रही है तो आपने एक और रोड ड्रॉ कर दी. सो जैसा आपका रोड्स रियल लाइफ में है आप उसको वैसे ही ड्रॉ करोगे. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच यू आर गोइंग टू कीप इन योर माइंड. फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, सिंबल बना के सिंबल वैसे के आपको वैसे कैसे रखने हैं एंड उनके नाम बताने हैं कि कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करना है. सेकंड पॉइंट क्या हुआ, आपको एक कॉम्पास रोज यूज करना है टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस. तीसरा आपको क्या करना है, जैसे रोड्स एंड इलेक्ट्रिक जैसे रोड्स एंड रेलवे लाइंस है वो वैसे के वैसे ही रिप्रेजेंट होगी. राइट, और फोर्थ पॉइंट आपको क्या करना है, फोर्थ पॉइंट इज स्केल, कि व्हाट इज द स्केल ऑफ मैप. सो इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली हियर द थिंग व्हिच इज गिवन हियर इज 0, 5 and 10 meters. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट स्केल ऑफ अ मैप. दिस इज व्हाट अ स्केल ऑफ अ मैप. So suppose 1 centimeter on my map, 1 centimeter on my map, if I put 1 centimeter below it, so that would mean 1 centimeter is representing what, 5 meter. So अगर मैप पे मैं 1 centimeter चला then that means मैंने actual real life में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया होगा. So suppose अंजू के घर से banyan tree की जो डिस्टेंस है वो मेरे मैप पे 1 सेंटीमीटर है. So रियल में वो कितनी होगी, it will be equal to, I will look at the scale, 1 centimeter is equal to 5 meter. So in real life it would be 5 meter. So this is how I will get the estimate of the distance, ki how far is the banyan tree. And similarly I can figure out any other distance. So if you all are clear with all these points, give me a thumbs up if you are good to go. Any doubts, then raise your hand. Great, Samruddhi is giving a thumbs up, thumbs up, thumbs up. Most of you are giving a thumbs up and some people are having doubts. So who is courageous enough who can summarize all the points so that people who are having doubts they get cleared? Who is courageous enough who will help their classmates to solve their doubts? Okay, let me ask Rushali this time. First, there are point of green point and brown stick, like there are tree and skin color. Rectangle shape is a colony and there are bus stop of pink dot and park of green rectangle. House is a black house shape and Fine, Rushali, this is fine, Rushali. This is absolutely correct. So basically, what is the thing which you are observing? कि ये जो मैप पे ये जो सारे सिंबल्स है, these can be represented by मैप पे जो एक्चुअल में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, these can be represented by symbols. छोटे छोटे सिंबल्स से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट?
ये पहली चीज हुई। दूसरी चीज आपने मैप में क्या देखी कि कॉम्पास रोज है डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, राइट? यस कि नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ठीक है। तीसरी चीज आपने क्या देखी कि रोड्स जैसे बनाई गई है, रोड्स हो गई आपकी, रेलवे लाइंस हो गई, तो उनकी डायरेक्शन जैसे एक्चुअल रियल लाइफ में उसी तरीके से हमने मैप में भी बनाया। अगर बैंयन ट्री के जस्ट आगे जाने के बाद रोड दो हिस्सों में कट जा रही है, सो दैट इज हाउ वी हैव ड्रॉन दिस इन द मैप, राइट? यस ये थर्ड चीज हो गई। एंड फोर्थ चीज क्या हुई कि मैप में एक स्केल है, राइट? यस तो इस स्केल का क्या यूज है? अगर मान लो ये जो है 0 से लेकर 5 तक जो है, ये अगर 1 सेंटीमीटर है, सो मैप पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर चलता हूँ तो रियल लाइफ में मेरे को कितना चलना पड़ेगा? 1 मीटर। 1 मीटर पक्का? 1 मीटर देखो, यहाँ से यहाँ तक जो है वो 1 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे नीचे मैंने मीटर लिखा हुआ है, एंड ऊपर क्या क्या मार्क आ रखा है ऊपर? ऊपर मार्क है, मीटर का मार्क है ना, हाँ हाँ, एंड यहाँ पे क्या नंबर है? 5। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो अगर आप 1 सेंटीमीटर चले ना मैप पे, मान लो आपने 1 सेंटीमीटर मेजर किया, अंजू के हाउस से बैनियन ट्री तक 1 सेंटीमीटर है, तो रियल लाइफ में आप अंजू के घर से अगर आपको बैनियन ट्री तक पहुंचना है तो आपको कितना चलना पड़ेगा? 1 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। रियल लाइफ में मैप पे 1 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। रियल लाइफ में 1 सेंटीमीटर चलोगे तो कितने आगे बढ़ोगे? 1 सेंटीमीटर इतना होता है ऋषाली, इतना इतना। रियल लाइफ में इतना चलोगे तो कितना कितना पहुंचोगे आगे? दैट वोंट मेक इवन अ स्टेप ऑल्सो, ठीक है, एक कदम भी आपका कंप्लीट नहीं होगा उसमें। सो यहाँ मैप पे अभी ध्यान से देखो, 1 सेंटीमीटर कितना डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है आपका? 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर। ओके, हु कैन हैव हेल्प रुशाली हियर? You can see a lot of people are raising their hands. Let's hear from Karthik this time. Karthik? भैया आई हैव अ डाउट। Okay, Karthik. पूछो। मुझे सिंबल का मीनिंग नहीं पता, और जो आपने बताया ना थोड़ा सा मतलब आगे नहीं बताओ, समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? आपने बुक खोला है, बुक पे पेज नंबर 81 आपने खोला है? यस ठीक है, अभी ध्यान से बुक को अभी खुला रहने दो, पर अभी ध्यान से पीपीटी पे देखो, ठीक है? यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? ये सारी जो ड्राइंग्स है, सिंबल का मतलब कुछ नहीं होता। सिंबल मीन्स wait, I'll show you what the symbol means, ठीक है? Just give me a minute. I will bring my notebook and pen. देखो कार्तिक, सपोज मेरे पास ये 2 बॉटल्स है, ठीक है? यस यस हाँ, ये मेरे पास 2 बॉटल्स है। सो ये अभी मैं कौन सी लाइफ में हूँ? मैं रियल लाइफ में हूँ, राइट? रियल लाइफ में मैं एक्चुअल में देख पा रहा हूँ कि ये 2 बॉटल्स है मेरे सामने, ठीक है? यस अभी मैंने क्या किया, इन 2 बॉटल्स को यहाँ रख दिया टेबल पे, ठीक है? इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, ठीक है? ये दोनों बॉटल अब एक दूसरे से थोड़े दूरी पे दूर है, राइट? यस ठीक है, अभी क्या करूंगा मैं, मेरे को मान लो इन बॉटल्स का मैप ड्रॉ करना है। आई वांट टू ड्रॉ अ मैप ऑफ दीज बॉटल्स, ठीक है? सो आई विल स्टार्ट ड्रॉइंग इट नाउ। यस नाउ टेल मी टू ड्रॉ दिस बॉटल ऑन द पेपर, ठीक है? आई वांट टू ड्रॉ द मैप, एंड मैप का मेन रोल क्या है? मैप का बड़ी बड़ी ड्राइंग्स करना, या सिर्फ हमें इतना बताना कि कौन सी चीज कौन से डायरेक्शन में है एंड दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? यस कौन सी
कौन से डायरेक्शन है और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, इतनी बड़ी बड़ी बॉटल्स को ड्रॉ करने के लिए मैप पे व्हाट आई विल से दैट कि इन दिस बॉटल इज नथिंग बट अ सर्कल। मैंने ये मान लिया कि ये बॉटल जो है ये कुछ नहीं है, ये मैप पे मेरे एक सर्कल होगी, ठीक है। और फिर मैंने मैप के साइड में लिख दिया कि दिस सर्कल, दिस राउंड राउंड सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग अ बॉटल इन रियल लाइफ। मैंने बोल दिया कि जहां भी आपको मेरे मैप पे सर्कल दिख रहा है, उस मैप का, उस सर्कल का मतलब है कि वो एक बॉटल है रियल लाइफ में। ये मैंने मैप के साइड में लिख दिया। तो ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया ना, ये कुछ नहीं हुआ, ये बॉटल का सिंबल हो गया कि मैप पे जो ये सर्कल है रियल लाइफ में वो एक बॉटल है। एंड वो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने मैप के साइड में लिख दिया कि ये सर्कल का मतलब बॉटल है। तो जो भी अब मेरा मैप पढ़ेगा वो समझ जाएगा कि सर्कल का मतलब बॉटल है। अब मैंने क्या किया, इस सर्कल के बगल में एक और सर्कल बना दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बॉटल है। तो मैप पे मेरी 2 बॉटल हो गई, एंड रियल लाइफ में भी मेरे पास कितनी बॉटल थी, 2। तो दोनों बॉटल को मैंने अपने मैप पे भी ड्रॉ कर दिया सर्कल की हेल्प से। पहला सर्कल पहली बॉटल हो गई, दूसरा सर्कल दूसरी बॉटल हो गई, राइट। अभी क्या है, रियल लाइफ में इन दोनों बॉटल के बीच में क्या डिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रियल लाइफ में इन दोनों बॉटल के बीच का डिस्टेंस मान लो 1 मीटर है। हमने मान लिया कि दोनों बॉटल के बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है। अब 1 मीटर अराउंड पता है कितना होता है आपको, 1 मीटर इज अराउंड 100 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आपका जो स्केल होगा, रूलर जो आपका स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में आता है, उस पर आप देखोगे तो उस पर रीडिंग का कितनी तक रहती है, 15 सेंटीमीटर तक रहती है उस पर रीडिंग, राइट। तो रियल लाइफ में दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि इतना सारा डिस्टेंस है। तो 100 सेंटीमीटर मैं पेज पे ड्रॉ करूंगा तो ये मेरा सर्कल पेज के बाहर ही चला जाएगा, ठीक है। तो उसको उसको 100 सेंटीमीटर एक्चुअल में ड्रॉ करने के बजाय मैं क्या बोल दूंगा कि मेरे मैप पे 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। कि अगर मेरे मैप पे 2 सर्कल के बीच डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, तो रियल लाइफ में उन 2 सर्कल के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो 100 सेंटीमीटर होगा। मतलब सिंबल मीनिंग इज मतलब वो जो बॉटल मतलब हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, जो भी है मतलब उसमें शेप्स में रखना होगा, उसको शेप्स में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। सिंबल का मतलब ये हो गया, एंड स्केल का मतलब ये हो गया कि स्केल का मतलब सिंपली डिस्टेंस को हमने छोटा करके दिखा दिया मैप पे, कि ये जो मैप पे 1 सेंटीमीटर है वो रियल लाइफ में 100 सेंटीमीटर होगा। बुक में ड्रॉ करना है क्या सिंबल में? बुक में अभी ड्रॉ नहीं करने, अभी बताएंगे आपसे, एक नया मैप ड्रॉ करवाएंगे, बुक वाला ड्रॉ नहीं करवाएंगे, ठीक है। नया मैप बनाओगे आप। यस संजना, एनी अदर डाउट्स? यस भैया। भैया मुझे इसमें सब समझ आया, लेकिन ये मुझे सेंटीमीटर का फर्स्ट साइंस क्लास में आपने ये बताया था कि सेंटीमीटर, उसमें भी मुझे नहीं समझ में आया था, और इसमें भी मुझे नहीं समझ में आया है मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसे। आपके पास स्केल रखा है क्या? स्केल लाओ आप एक। और किसी को डाउट है मीटर सेंटीमीटर में मैप पे स्केल क्या होता है, उसमें उसका मतलब समझने में किसी को डाउट आ रहा है? ठीक है, सभी अपना स्केल लिया है। अभी देखो आपका स्केल पे लास्ट रीडिंग क्या है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? आपका स्केल 15 पे खत्म हो गया, राइट? यस। और कैसे मार्किंग दे रखी है आपके स्केल में? 1 2 3 4 ऐसे दे रखी है, राइट? यस भैया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक नंबर लिखे हुए हैं आपके स्केल पे। यस। तो आपका स्केल जो हुआ वो कितने सेंटीमीटर का? 15 सेंटीमीटर का। आपका 0 से 1 तक का जो डिस्टेंस है दैट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यस। भैया के पास अभी स्केल नहीं है, बट भैया कॉपी से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे स्केल ड्रॉ कर दूं अपना, भैया बैक कैमरा करके दिखा दो ना। बैक कैमरा नहीं है मेरे लैपटॉप। यहाँ पे देखो, अब ये मैंने ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्केल शुरू हो रहा है 0 से, ठीक है, 0 से शुरू हो रहा है। yes. फिर थोड़ा आगे आप आओगे तो 1 आ गया, राइट? थोड़ा आगे आओगे तो 2 आ गया, ठीक है। ऐसे आगे चलते जाएंगे तो 15 तक पहुंच जाओगे आप, ठीक है।
यस अब बताओ, ये 0 से 1 तक के बीच में जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस मीन्स दूरी, 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है डेट इज कॉल्ड 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 1 सेंटीमीटर। यस 1 से 2 यस के बीच में जो डिस्टेंस हुआ डेट इज कॉल्ड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यस तो अभी यस आगे चलते जाएंगे तो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कर लिया हमने? 15 मैक्सिमम हमने 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट? यस ठीक है, अभी मानो, संजना ध्यान दो यहाँ पे। ठीक है, अभी मानो कि मेरे पास पहली बॉटल यहाँ पे थी। ठीक है, पहली यस बॉटल यहाँ रखी है एंड दूसरी बॉटल जो है वो 100 सेंटीमीटर दूर रखी है। ठीक है, आपका स्केल 15 सेंटीमीटर पे खत्म हो गया, यस दूसरी बॉटल 100 सेंटीमीटर दूर है, तो बताओ कहाँ ले जानी पड़ेगी मेरे को दूसरी बॉटल? इस पेपर पे आएगी क्या ये? इस पेपर पे वो दूसरी बॉटल आ पाएगी या ये पेपर ही खत्म हो जाएगा? नो आ पाएगी। पर ये स्केल मेरा 15 सेंटीमीटर पे खत्म हो गया, 15 सेंटीमीटर से और आगे चलना है मेरे को, 75 सेंटीमीटर और आगे जाना है, तब 100 सेंटीमीटर खत्म हो पाएगा मेरा। 75 पर नहीं 100 75 कैसे नहीं, होगा भैया? 75 सेंटीमीटर होगा ना? सॉरी 85। आपको 85 सेंटीमीटर और आगे जाना पड़ेगा, तब आपका 100 सेंटीमीटर कवर होगा, राइट? अभी आपने सिर्फ 15 सेंटीमीटर कवर किया है, तो बताओ 85 नो सेंटीमीटर भैया, क्या? अगर हम 100 सेंटीमीटर जाएंगे तब हमारा 100 होगा। 15 सेंटीमीटर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं ना हम यहाँ पे। यस हमको 100 सेंट, हमको इतना पता है दो बॉटल के बीच में जो डिस्टेंस है वो 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके तो इस 15 सेंटीमीटर के आगे मेरे को 15 सेंटीमीटर और चलना पड़ेगा, तो होगा 30 सेंटीमीटर, राइट? यस तो 30 के बाद 30 सेंटीमीटर और तब होगा 60 सेंटीमीटर, 60 के बाद यस 30 और तब होगा 90 सेंटीमीटर, और 90 के बाद 10 और तब होगा 100 सेंटीमीटर, राइट? यस यस तो इस पेपर के तो बाहर ही आ गया मैं। नो भैया, आपने गलत बताया। हमें 100 के आगे नहीं जाना था। आपने बताया कि हमारे पास 15 पहले से ही है। 15 मैं बता रहा हूँ कि 15 आपका स्केल पे है, ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूँ मेरा पॉइंट क्या है बताने का, कि 15 आप पेपर पे ड्रॉ कर पा रहे हो, राइट? यस रियल लाइफ में जो दोनों बॉटल के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो 100 सेंटीमीटर है। पेपर पे नो आप, 15 अरे रियल लाइफ में मैंने बॉटल, एक बॉटल यहाँ रखी है एंड दूसरी बॉटल इतनी दूर है, 100 सेंटीमीटर दूर है। नो मैं सपने में देखती हूँ। संजना अभी ध्यान दो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि नहीं समझना है? समझना है ना, एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ये 20 मार्क्स का आएगा। समृद्धि, कैन यू हेल्प संजना हियर? आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं मैथ से। We are going, means we have 50 centimeter scale, but the total distance in real is in 5 meters. So if we have to go from 15 centimeter, if we want to go to 5 meters in from a scale, we have to draw on a map. So we will do it like, firstly, like an example, if it is 1 centimeter, it will become 5 meters. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो हमने बड़ी डिस्टेंस को छोटी डिस्टेंस में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि हमारे एक पेज पे पूरा मैप आ जाए। सो सिंपल, ये चीज कर रहे हैं हम अभी। नाउ देयर इज अ क्विक एक्टिविटी, ठीक है? देयर आर टू मैप्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई विच मैप इज करेक्ट। इसमें कौन सा मैप करेक्ट है, मैप ए और मैप बी? एवरीबडी टाइप इट इन द चैट बॉक्स, व्हाट यू थिंक इज विच मैप इज करेक्ट? Most of you are telling that it is A. Rushali, can you come off mute and share with us why is it A?
Rushali, are you there? Yes, Rushali. भैया मुझे अभी वो स्केल के 15 के बारे में समझ नहीं आया। संजना, मैं आपको क्लास के बाद समझाता हूँ, ठीक है? वन ऑन क्लास वन खत्म हो जाएगी तब फोन करके कि क्लास में ही? क्लास में ही आप रुकना, आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है? ओके। First map is right because there are points like there are मतलब वहाँ एक लाइन है और लिखा है स्टेट बाउंड्री और वो ऑप्शंस मतलब वो है ना, वो हमको समझाता है, मतलब वो हमको समझ में आता है ना कि ये इसका पॉइंट है, वो उसका पॉइंट है, इसलिए ये मैप करेक्ट है और इसमें स्केल्स भी है। यस। एंड ऑल्सो कंपास। कॉम्पास रोज भी है, सो एब्सोल्युटली करेक्ट। सो मैप के जो हमारे एसेंशियल चीजें थे, सिंबल्स होना, मैप पे सिंबल्स होना, ठीक है? बेसिकली तो सिंबल्स है, वो सिंबल का क्या मतलब है वो भी हमें एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट? वी हैव एन इंडेक्स, ठीक है? वी हैव एन इंडेक्स विद अस, we have a scale with us, we have a scale with us, and we have a compass rose with us, right? So map के जो essential components थे, all the essential components are there on this picture, but इस पिक्चर पे कुछ है ही नहीं, बी वाली पिक्चर पे सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है। इस सिंबल का क्या मतलब है? इफ एनी अदर स्ट्रेंजर इज लुकिंग एट दिस सिंबल, हाउ विल ही आइडेंटिफाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लार्ज सर्कल एंड दिस स्मॉल सर्कल? इज देयर एनी वे टू फॉर हिम टू आइडेंटिफाई? नो, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है इस मैप पे, right? So that is why index is very important for a map, and that is why this map is correct, because it has index, it has a scale, and it has a compass rose which will help us to identify directions. So now, using these three essential things, what you are going to do now is draw your own map, ठीक है? ड्रॉ योर ओन मैप, ठीक है? अभी आप खुद से अपना मैप ड्रॉ करोगे, एंड दीज आर द थिंग्स विच यू आर गोइंग टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्रॉइंग योर ओन मैप, ठीक है? किन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप इंपॉर्टेंट सिंबल्स को लेबल करो, ठीक है? यू हैव टू लेबल द इंपॉर्टेंट सिंबल। आपके मैप में कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सपोज आपके मैप में हो सकता है मे बी सर्कल ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो जहां भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे वहां आप सिर्फ सर्कल ड्रॉ करो, एंड मैप के साइड में एक इस टाइप का कॉलम बना के राइट डाउन कि दैट दिस सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, अ ट्री, राइट? सो सिमिलरली हर एक चीज को आपको सिंबल देके बताना है कि वो सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? रेलवे लाइंस एंड रोड्स की जो ऐसी डायरेक्शन है, जैसे रियल लाइफ में वैसी आपके मैप पे होगी, ठीक है? और फिर उसके बाद आपको कॉम्पास रोज अपने मैप पे देना है एंड स्केल देना है कि 1 सेंटीमीटर आपके मैप पे इज हाउ मच इन रियल लाइफ, 1 सेंटीमीटर इन योर मैप इज हाउ मच इन रियल लाइफ. So all these things you have to do. Everybody, you have 3 minutes to do this, and your time starts now. You have to draw map of your locality. आपके घर से आपको मैप बनाना है, आपके घर से आसपास जो भी चीजें है उन चीजों का एक मैप बनाओ पूरा, ठीक है? एंड स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम. So भैया will start drawing his map. We will take 3 minutes to do, and after 3 minutes we will come back and show our map to the entire class, and also you will click a picture and send me privately on my WhatsApp group. Or don't send me privately, put it on your homework group so that everybody can look at what you have drawn. Okay, we can learn from each other. देखते हैं किसका मैप सबसे अच्छा बनता है. Great. So all of you have already started. Great, your time has started.
I can see Karthik is drawing, Samruddhi is drawing, Rushali is drawing, Sanjana is drawing, Yash is drawing, Alar is drawing. People who have switched their videos off, they also start drawing. Yes, Rushali, any doubt? भैया मतलब हमारे घर के आसपास है वो ही निकलना है क्या? हाँ हाँ, घर के आसपास जो भी है उसका मैप ड्रॉ करना है। और मैप को इतना अच्छा ड्रॉ करो कि उस मैप को यूज करके आप एक्चुअली बाहर निकल के डायरेक्शंस ढूंढ पाओ। ठीक है, मैप का जो मेन यूज है डायरेक्शन ढूंढना एंड डिस्टेंस पता करना, दैट यू सो दैट यू आर एबल टू यूज इट। अभी शाम को ना सब घर से बाहर निकल के अपना मैप यूज करके जाएंगे मार्केट। ग्रेट। भैया इज ऑल्सो ड्रॉइंग हिज मैप। Great. So it's already 5 minutes. Let's start coming back. Bhaiya has drawn his map and Bhaiya will post it on your group. All of you start posting pictures of your map on the group. I hope everybody has taken care of the required things in a map. I will put my maps picture in the group. Just give me a minute. By the way, Bhaiya's drawing is not very good, so don't judge Bhaiya if his drawing looks very bad to you.
Everybody start putting your map pictures now. I hope all of you are ready and have drawn their beautiful maps. Things to keep in mind: symbols, index, scale, and compass rose. Waiting for people to send their pictures. No pictures yet. Come on, fast. Yes, Kartiki. भैया मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मैं नहीं करूंगी सेंड। अरे भैया की ड्राइंग देखी आपने? भैया ने क्या कचड़ा सेंड किया है? 1 मिनट देखती हूँ। जो बना रहे हो वो भेजो। मुझे नहीं दिख रहा। रॉयल रोजेस वाले ग्रुप में देखो। हाँ रॉयल रोज क्या? हाँ। यस मल्हार, एनी डाउट्स? उससे भी गंदी है मेरी। भैया ये वो बाजू वाले ले भैया, मैं बाद में फोटो भेजू क्या?